let's start with the concurrency and concurrent programming. So let's try to understand that we have a program जिसके अंदर कुछ statements हैं. Statement 1 is A equals to B plus C. Statement S2 can be A equals to E asterisk F. Statement S3 says A equals to A plus D. And let's assume some statement S4 says L equals to M plus K. So these are some statements. Okay. Now, what do I mean by concurrently executable statement? तो मैं दो स्टेटमेंट को concurrently execute कर सकता हूँ, दो स्टेटमेंट को concurrently execute कर सकता हूँ अगर उनके रीड सेट, इसका मतलब अगर उनमें से जो भी एक स्टेटमेंट जिन वेरिएबल्स को रीड कर रहा है उनको कोई और राइट नहीं करता हो, या तो फिर दो स्टेटमेंट सेम वेरिएबल को राइट ना करते. ठीक है. सो जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. जस्ट लिखो स्टेटमेंट्स आर सेट टू वॉल्यूम कम आ रही है. अब चेक करो, सही होना चाहिए, अभी सही होना चाहिए. सो जस्ट नोट डाउन two statements are said to be concurrently executable. Two statements are said to be concurrently executable if output of one statement. Two statements are said to be concurrently executable if output of one statement, if output of one statement is not serving, if output of one statement is not serving as an input of another statement, as an input for another statement. If output of one statement is not serving as an input for another statement, or two statements does not write, or two statements that does not write the same variable, or two statements does not write the same variable, right? But still there will be a sequence which you need to follow. So let's try to understand this. Here, look at this. Here the statement S1 is writing or updating the variable A, and statement S2 is not reading the variable A as well as not updating the variable A. Similarly, the statement 2 is updating the variable D, and it is not being read by statement 1 and neither being written by statement 1. Therefore, can we say that statement S1 and S2 can be executed concurrently? Can we say that statement S1 and S2 can be executed concurrently? Yes. So you can actually see that statement S1 and S2 right? Now, look at this statement S3. You can only, so this is the sequence, so you can start executing the statement S3 only when the statement S1 and S2 has completed their execution. Why? Because statement S3 is actually reading, the value of A and D, and those values, so this statement S3 in the sequence, in the program sequence, eventually comes after S1 and S2. It means the statement S3 would like to read the value of A and D updated by statement S1 and S2 respectively.
नहीं चंद्र प्रकाश, यू आर नॉट टू लेट, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है ना। सो स्टेटमेंट S3 का एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ तब स्टार्ट हो सकता है जब S1 और S2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका हो। सो जस्ट नोट डाउन, statement S3 can start executing only after the execution of S1 and S2. Only after the execution of S1 and S2. Similarly, if we talk about statement S4, then what about S4? S4 can start executing only after the execution of statement 3, because statement S4 is reading the value which is updated by statement 3. So S4 can start I hope this thing is clear to everyone. So, if I define the read set and write set for an instruction in a particular manner, let's assume. So, let of the statement SI that is variable updated by now. Will you video not loaded? वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या? ये मेरे इस पे से ऐसा क्यों दिख रहा है? फिर फंस गया? नहीं, क्लियर है। हेलो, ये यहाँ पर क्लियर चल रहा है, वहां पर क्यों हैंग हुआ? दोनों अलग अलग वो लॉगिन किए हुए हैं क्या? हाँ, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? भी ठीक है, इसको नीचे स्क्रॉल करना, गेट को। सर बीच में बंद हुआ था, बफर हो रहा था सर, अभी ठीक है। हाँ, वो मैंने रिफ्रेश किया, लेकिन रिफ्रेश करने के बाद मेरी स्क्रीन पे फिर भी वो बफर ही दिखा रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। चलो, let's start. So, this read set of SI is nothing but the variable which is being read, which are being read by statement SI, and this is the variable being updated by statement SI. So, for this statement, if I simply say what will be read set of statement at S1, so A, B, C. So, if I define that what is the read set of statement S1, so read set of statement S1 is nothing but the variables B and C. So these are the two variables. These are the two variables which are being read by statement S1. If I look for the write set of statement S1, then this will be A. That the variable which is being updated by statement S1 is A. Now, when do I say that two statements Si and Sj can be executed concurrently only if, when, first thing, the read set of statement Si
intersection with right set of statement Sj must be equals to phi. That is, जो भी वेरिएबल आपका स्टेटमेंट ऐसा रीड कर रहा है उसको स्टेटमेंट एस जे अपडेट ना करता हो, एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैंने वहां पर डिक्टेशन की फॉर्म में लिखवाई है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अनदर थिंग इज राइट सेट ऑफ स्टेटमेंट एस आई and right set of statement Sj should also be pi. That is, they should not be updating the same variable. They should not be updating the same variable. Now, if ये लिख रहा हूं तो इसका कन्वर्स भी लिख लो. What read set of statement Sj intersection with right set of statement should Si should also be equals to pi. If these three conditions are satisfied, then आप ये बोल सकते हो कि Si जिस वेरिएबल को रीड कर रहा है उसको Sj राइट नहीं कर रहा है, या तो फिर Sj जिस वेरिएबल को रीड कर रहा है उसको Si राइट नहीं कर रहा है, और दोनों ही दो डिफरेंट वेरिएबल को राइट कर रहे हैं. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इन स्टेटमेंट्स को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? फिर व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्करेंसी? Right, so that's okay. Now, the execution sequence of statements can also be represented using precedence graph. So what will be the precedence order for the execution of this statement? What is the precedence order of execution of this statement? So let's try to understand. These two statements S1 and S2 can be executed concurrently because there is no precedence in what order S1 is executed and in what order S1 and S2 are executed. इसका फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. बट दी ओनली आइडिया इज S1 और S2 को S3 के पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए क्योंकि S3 विल इवेंचुअली यूज दी वैल्यूज अपडेटेड बाय स्टेटमेंट S1 एंड S2. तो आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर यहां पर स्टेटमेंट S1 और S2 को तो पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो अगर पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है इसका मतलब दे कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरो. जो भी प्रेसिडेंस ऑर्डर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरो कि आफ्टर विच what particular instruction can be executed. Now S1 and X2 can be executed parallelly, so this represents parallel. यहाँ पर कोई arrow नहीं है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब they can be executed parallelly. Now after the execution of S1 and S2 only you can start executing the statement S3. So before you start executing the statement S3 can be executed only after the execution of statement S1 as well as after the execution of statement S3 statement S2. इसका मतलब execution of S3 is dependent on the execution of statement S1 and S2. When both S1 and S2 can have executed, then only you can start executing the statement S3. Similarly, after execution of statement S3 only, you can start executing the statement S4. Is this clear that how this precedence graph is constructed? Clear है सबको? Okay.
Sure. So now we'll define the concept. Let's try to understand. If we write the program just like this, what happens? In general, program execution will happen in sequential order. In general, program execution will happen in sequential order. इसका मतलब सबसे पहले स्टेटमेंट S1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही स्टेटमेंट S2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही स्टेटमेंट S3 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही स्टेटमेंट S4 एग्जीक्यूट होगा. नाउ सर ये टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, समझो. थोड़ी देर में अगर नहीं समझ में आता है तो आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. शुभेंदु लेट आए हो क्या? है ना? कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, सिर्फ ये बोला है कि व्हाट इज कॉन्करेंसी एंड कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग. व्हाट इज कॉन्करेंसी जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज कॉन्करेंसी एंड कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग. सो कॉन्करेंसी मींस दैट if the instructions can be executed concurrently, then it represents the concurrency in the program. If certain instructions of the program can be executed parallelly, इसका मतलब उनका एग्जीक्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, then it represents the concurrency present in the program, right? But here the concurrency is present in the program, that S1 and S2 are not dependent on each other. But how do you inform the system that these two instructions can be executed concurrently, and how actually they are executed concurrently? So let's try to understand. On a uniprocessor system, there will be no significance. On a uniprocessor system, there will be no significance of concurrent programming, because at a time only one instruction can be executed. Yes or no? If the system is a uniprocessor system, a single core system, then at a time only one instruction can be executed. Then there is no point of using the concept of concurrent programming. But if the system is multiprocessor system or multi-core system, then the different instructions can be executed on different processors at the same time. So the idea is, आपका सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. समझना बात को, पिक्चर में कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं. आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उस प्रोग्राम की ये स्टेटमेंट है. तो इन जनरल एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ही प्रोसेसर यूज होगा. इन जनरल एक प्रोग्राम को या एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ही प्रोसेसर यूज होगा. वो क्यों इस चीज के ऑर्डर को चेंज करेगा? प्रोसेसर को दिमाग नहीं है भाई. प्रोसेसर को कुछ नहीं आता. सीओए जब पढ़ोगे तो आपको यही चीज बताऊंगा कि प्रोसेसर को कुछ भी नहीं आता. प्रोसेसर जो कुछ भी करता है वो हमारा सिखाया हुआ काम करता है, उसको अपनी मर्जी से कुछ करना नहीं आता. ठीक है, तो उसको कैसे पता कि S1 और S2 को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो? उसको नहीं पता. तो आपको ये चीज एक्सप्लिसिटली आपके कोड को लिखने की स्टाइल में बतानी पड़ेगी कि S1 और S2 को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है. तो अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि अरे भाई ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो सीपीयू जब उस पैराबिगिन को देखेगा तो बोलेगा अच्छा इसका मतलब ये चीजें कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकती है, तो वो उसको जिस तरीके से कंपाइल करेगा वो उसको अलग अलग प्रोसेसर के ऊपर शेड्यूल कर सकता है. Clear? So the actual benefit of the concurrent programming can be achieved only on multiprocessor system. Actual benefit of concurrent programming can be achieved only on multiprocessor system, because if the system is a uniprocessor system, only one instruction will get executed. So there is no point of writing the concurrent program. But if there is concurrency and you are using a multiprocessor system, then it will be a good approach to execute statement S1 on another processor and execute statement S2 on another processor, so that the execution of two statements can be completed in the execution time of a single instruction. So the overall program execution will take lesser amount of time. That is, the speed of the overall system will enhance. Yes or no? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? शुभेंदु समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर कुछ कॉन्करेंसी हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि कॉन्करेंसी है क्या. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्करेंट प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं. अभी तक मैं उस जगह पे पहुंचा ही नहीं हूं. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप इन चीजों को देख करके समझ सकते हो कि भाई ये दोनों को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन स्टेटमेंट S3 का जो एग्जीक्यूशन है दैट कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ S1 एंड S2, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ S4 कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट S3 because it requires the value updated by statement S3. तो मैंने सिर्फ ये दो टर्म डिफाइन की रीड सेट क्या होता है, राइट सेट क्या होता है. ठीक है, उसके बाद ये वाली सारी चीजें लिख दी ना. उसके बाद मैंने बोला कि भाई जो आपका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है उसको आप प्रेसिडेंस ग्राफ का यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. उसका मतलब क्या कि दिस टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली. इनके पहले किसी और चीज को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है.
ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। बट एग्जीक्यूशन ऑफ S3 इज डिपेंडेंट, सो प्रेसिडेंस ग्राफ डिफाइंस द प्रेसिडेंस दैट व्हिच इंस्ट्रक्शन शुड एग्जीक्यूट और द एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच इंस्ट्रक्शन शुड प्रीसीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन. सो इट सेज execution, this is the order, the edge, the direction of the edge will define the precedence that S1 should execute before the statement S3 as well as S2 should execute before the execution of S3. That is, you can execute statement S3 only after the complete execution of S1 and S2. But S1 and S2 can be executed parallelly. But S1 and S2 can be executed parallelly. So just write this. क्योंकि इनके बीच में कोई प्रेसिडेंस नहीं है, आया ना? इनके बीच में कोई प्रेसिडेंस नहीं है. इफ S3 डिपेंड ऑन S1 ओनली, हाउ द प्रेसिडेंस ग्राफ मेड फॉर दैट. आ जाएंगे. इसका मतलब S2 के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, S2 के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. ये कहना चाह रहे हो अक्षर? क्या आप ये कहना चाह रहे हो अक्षर कि S2 के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या आप किसी और तरीके की चीज चाह रहे हो? मुझे ये बताओ, S2 के ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट भी है या नहीं? तो मैं बता देता हूं कि प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनेगा, है ना. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो प्रेसिडेंस है उसकी करस्पॉन्डिंग एजेस बना देनी है. यस, S2 इज इंडिपेंडेंट. सो अगर S2 इंडिपेंडेंट है तो S2 को साथ के साथ पैरेलली, इन पूरी तीनों चीजों के साथ S2 को पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है. S2 को पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है. इसका मतलब S2 का एग्जीक्यूशन कब होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इन तीनों चीजों का एक ऑर्डर हो गया कि पहले S1 एग्जीक्यूट होगा, फिर S3 एग्जीक्यूट होगा और फिर S4 एग्जीक्यूट होगा. लेकिन इन तीनों का जो एग्जीक्यूशन है वो S2 से इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब S2 कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ सेपरेट प्रोसेसर एंड on another processor. First you will execute S1, then you will execute S3, then you will execute S4. Clear? So that's the logic. Don't worry. So whatever is given, the graph can be disconnected. Then obviously the graph can be disconnected, but eventually I don't understand why would there be a statement which does not have any significance in the program. So if you are writing something, then it will eventually be corresponding to some. It will eventually correspond to something else. Therefore, the things will be dependent. So the graph can be disconnected. There's no problem with that. If you are writing any such statement which is not dependent on the execution of any other statement, then graph can be disconnected. Okay. So मैं कहाँ था? तुमने मुझको रोक दिया. मैं कुछ तो बोलने वाला था. S1, तो this is the precedence order. Okay, चलो शुरू करते हैं, वापस चलते हैं. ना अब अगर कॉन्करेंसी है प्रोग्राम में, तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे, ठीक है. सो कॉन्करेंट प्रोग्राम्स कैन बी रिटन. तो ये राइटिंग स्टाइल है. इसका मतलब अगर आप उस तरीके से कोड को लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है. कॉन्करेंट प्रोग्राम्स कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ begin parent statement and this begin parent statements are also known as co-begin co-end. That you can begin the concurrent execution of those statements, and at this point of the concurrent execution ends for those statements. Clear? So okay. What does it mean? If I simply say begin and end, and in between, if I write statements S1, S2, S3. So this begin and end does not correspond to concurrency. You can eventually skip this begin and end.
Even if you don't write this begin and end, then the execution will happen sequentially. Even if you don't write this begin and end, there's no problem with that. This thing is exactly same as writing S1, S2, S3. Why? Because by default execution will happen sequentially, है ना? So आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इस चीज के करस्पॉन्डिंग जो प्रेसिडेंस ग्राफ होगा, इस चीज के करस्पॉन्डिंग जो प्रेसिडेंस ग्राफ होगा वो कैसा होगा? सर ये जो सीक्वेंस है ये बताती है सबसे पहले स्टेटमेंट S1 एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट S1 एग्जीक्यूट होगा. ओनली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट S1 यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट S2 एंड ओनली आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ S2 यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट S3. क्लियर है? कितनी चीज क्लियर है? अब अगर मैं यहीं पर पैर बिगिन पैरेंट लिख देता, अगर मैं इसी कोड को ऐसे लिखता पैर बिगिन एंड पैरेंट, इसके बीच में अगर ये स्टेटमेंट्स होते हैं S1, S2 एंड S3, तो इसका प्रेसिडेंस ग्राफ कैसा बनता? सर इसका प्रेसिडेंस ग्राफ कैसा बनता? देखो ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट S1, S2 एंड S3 कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली. Pair begin parent, इसका मतलब parallel execution starts and up to which point these statements can be executed parallelly. At this point of time it says that the parallel execution can be start and up to which point the statements can be executed parallelly, up to the pair end the statements can be executed parallelly. So the idea is this three statements can be executed parallelly. और अगर इन तीनों को parallelly execute किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है? अगर इन तीनों को parallelly execute किया जा सकता है, इसका ये मतलब है कि यहां पर कोई precedence order नहीं है. Yes or no? क्लियर है कि यहां पर कोई प्रेसिडेंस ऑर्डर नहीं है, इन तीनों को किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जा सकता है. इसका मतलब दिस विल बी स्टेटमेंट S1, this will be statement S2, this will be statement S3. Don't think in these size, क्योंकि यहां पर कोई एरो नहीं है, इसका मतलब यहां पर कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि किस स्टेटमेंट को किस स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट होना है. क्लियर? यहां तक बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो आगे चलें. ठीक है, सो एक चीज लिख लेना दैट the actual benefit of concurrent programming can be achieved only with multi-processor system. क्योंकि आप इन इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ये सिस्टम पैरेलली सिर्फ और सिर्फ अब पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं जब वहां पर उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करने के लिए दो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट अवेलेबल हो. है ना सर? पैर बिगिन क्लियर नहीं है, पर बिगिन नहीं है. सबसे पहले तो वो पर बिगिन नहीं है गुलाम, पैर बिगिन है. सुनो, आप लोगों को इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि आपने ये कॉन्स्ट्रक्ट कभी इससे पहले पढ़ा ही नहीं. सर ये पैर बिगिन मींस पैरेलल बिगिन, यस दैट मींस पैरेलल बिगिन. नाउ क्योंकि हम लोग मल्टी प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी प्रोग्राम लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ अपना प्रोग्राम लिखते हैं. कभी ये नहीं सोचते कि इनमें से कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि हम कभी भी हमारी राइटिंग स्किल को हमारे प्रोग्राम राइटिंग स्किल को इस तरीके से डेवलप नहीं करते कि हमारा सिस्टम कितने कोर वाला प्रोसेसर है, वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है या यूनि प्रोसेसर सिस्टम है. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ होता है उसके एग्जीक्यूशन पे कि प्रोग्राम का जो आउटपुट हो वो करेक्ट हो. अब मैं आपसे जो चीज कह रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को अगर
एक के बाद एग्जीक्यूट कराया जाए और इन तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करा दिया जाए। अगर ये तीनों इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखते तो ये इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते। लेकिन अगर एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते और लेट्स एज्यूम कि एक प्रोग्राम को, एक इंस्ट्रक्शन को, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में टी टाइम लगता है, तो टी टाइम में ये एग्जीक्यूट होता, टी टाइम में ये एग्जीक्यूट होता, टी टाइम में ये एग्जीक्यूट होता। इसका मतलब टोटल टाइम जो लगता इस स्टाइल में लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, वो लगता है 3t टाइम। इस स्टाइल में लिखे हुए प्रोग्राम को, इस स्टाइल में लिखे हुए इन तीन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में लगता है 3t टाइम। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट चॉइस लेते और अगर आप कॉन्करेंट प्रोग्राम लिखते, आप सेम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्करेंट प्रोग्राम लिखते, व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, अगर आप ये एनालाइज करने की कोशिश करते कि स्टेटमेंट S1 S2 एंड S3 कैसे थे, स्टेटमेंट S1 S2 एंड S3 कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट थे, इनका मतलब इन तीनों को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता था। तो अगर आप per begin और per end का यूज करते और अगर आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता, प्रोवाइडेड ऐसा लिखो या ऐसा लिखो से तब फर्क पड़ेगा कि जब सिस्टम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो। अगर सिस्टम ही यूनी प्रोसेसर सिस्टम होता तो आप लिखते थे per begin per end, लेकिन वो एक प्रोसेसर पे एट अ टाइम तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता था। तो अगर आपका सिस्टम भी यूनी प्रोसेसर सिस्टम होता तो आपको इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने में 3t टाइम ही लगता, 3 into t टाइम्स टाइम ही लगता। लेकिन अगर आपके सिस्टम में 3 या 3 से ज्यादा प्रोसेसर अवेलेबल थे, 3 या 3 से ज्यादा कोर अवेलेबल थे, तो ये जो स्टेटमेंट्स थे वो अलग अलग कोर पे पैरेलली एग्जीक्यूट किए जा सकते थे। ये तीनों ही आपके कितने टाइम में साइमल्टेनियसली अलग अलग प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो जाते और इन तीनों स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता कितने टाइम में, सिर्फ टी टाइम में, सिर्फ टी टाइम में। पैर बिगिन पैर एंड इज अ कंस्ट्रक्ट, समझना। अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स को सिस्टम पे पैरेलली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो और अगर आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है जो इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आप ये वाली चीजों का यूज कर सकते हो, है ना? क्लियर है? तो इस तरह सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट्स को पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है और अगर आप यूनिप्रोसेसर सिस्टम पे ऐसे ही लिखोगे तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप यूनिप्रोसेसर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो। इसीलिए मैंने बोला आपका जो एक्चुअल में कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग है, उस कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ तब उठा सकते हो जब आपका जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो, अदरवाइज आप कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का बेनिफिट नहीं उठा सकते। क्लियर सर? व्हाई दिस टू वे एरो, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया? अगर आपने ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेसिडेंस ग्राफ ऐसा होगा। और अगर प्रेसिडेंस ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, अगर प्रेसिडेंस ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है तो उसके लिए जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपका गिवन प्रोग्राम इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका जो प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। और अगर प्रेसिडेंस ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट कॉन्करेंट प्रोग्राम लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा that S1 S2 and S3 can be executed parallelly, S1 S2 and S3 can be executed parallelly. Clear? So that's the objective, but the important thing is that इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब है जब आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। Clear? Now let's write a question. Write the precedence or write the concurrent program for following precedence graph. So the first precedence graph is, let's assume that I start from statement S1, then उसके बाद I can parallelly start the execution of two statements, let's say S2, so S3. Then after this अपने मर्जी से मत चला कर S4, and you can start the parallel execution of S5, S6, and in the end, then execute S7.
Try writing the concurrent program for this. एबीसी के फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई? ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है कि अगर प्रेसिडेंस ग्राफ ऐसा होता तो मैं ऐसे लिखता, ऐसा होता तो ऐसे लिखता। एबीसी कहाँ है? एबीसी कहाँ है? आप लोग सिर्फ लिख के रख लो। आई मीन आपको 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग लिख के रख लो, बाद में मैं लिखूंगा, क्रॉस चेक कर लेंगे। और अगर कुछ गलत कर रहे हो देन लेट इट बी इन योर नोट्स, बाद में उसको सर्कल कर लेना दैट दिस इज रॉन्ग, बट आपको उससे समझ में आएगा। एबीसी की फॉर्म में जो लिखोगे, जो सिखा रहा हूं उसी फॉर्म में लिखोगे ना भाई। डन सर, चलो देखते हैं। Okay, how do you write this concurrent program? So first, before doing anything, the execution will start from S1. So first of all, you will execute the statement S1. First of all, you will execute the statement S1. Now, अब चीजों को समझने की कोशिश करना. Once you are done with the execution of statement S1, do we have any concurrency? Do we have any concurrency? So, if you are saying that sir S2 and S3 can be executed concurrently, if you are saying that S2 and S3 can only be executed concurrently, but S4 and S3 cannot be executed concurrently, then you are wrong. Then you are wrong. What you need to understand is that this whole thing can be executed concurrently along with the execution of S3. है ना? इस पूरी की पूरी चीज का, अब देखो, जब तक S3 और ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक S7 का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। जब तक S3 और इस पूरी चीज का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक S7 का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। बट जो कह रहा हूं उसको समझना कि S3 का जो एग्जीक्यूशन है वो इस पूरे एग्जीक्यूशन से इंडिपेंडेंट है। यहां पर कहीं भी कोई एरो नहीं है, इस पूरे एग्जीक्यूशन से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब S3 कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली विद दिस होल थिंग। Yes or no? So first of all, you will write the pair begin and parent code. You will write pair begin. So after the execution of S1, you will start pair begin. But now you can start executing the things parallelly. What things will be executed parallelly? So S3 will be executed parallelly. S3 will be executed parallelly along with what? S3 can be executed parallelly along with this. So how do you write the code for this? How do you write the code for this? So again the problem occurs that if I simply write S2 S4, then if I write S2 and then I write S4, then S3 S4, this whole thing will get rusted. So the idea is कि ऐसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये पूरी की पूरी एक चीज थी। क्या इस चीज को बिगिन एंड एंड का यूज करके लिखा जा सकता है? हाँ, इनिशियली आप बिगिन नहीं लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं अगर इस चीज को लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत, और नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इन जनरल एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट सीक्वेंशियली। नाउ व्हाट विल हैपन? सर दिस इज द बिगिन S1, इसका मतलब सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये देखेगा पैर बिगिन तो बोलेगा ओ नाउ पैर बिगिन आ गया, इसका मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकता है। कब तक पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकता है? जब तक ये पैर बिगिन पैरेंट नहीं हो जाता। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सबसे पहले इस पर बिगिन इसका मतलब क्या क्या चीजें, S1 कैन बी एग्जीक्यूटेड, S1 कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विथ होल दिस थिंग, sorry, not S1. S3 can be executed along with this whole thing. So what is this thing? इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूं begin what? S2, first execute S2, then execute S4 again. So the good thing is, once you have executed S2, once you have executed S4, you can start the execution of S5 and S6 parallelly. You can start the execution of S5 and S6 parallelly. So you'll again start per begin code. You'll again start per begin that S5 and S6 can be executed parallelly. Now you will end this parent, then you will end this begin, then you will end this per begin. सो आप बोलोगे सर ऐसा इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? इसको इसलिए बना रहे हैं कि आपको सिर्फ एक बार टाइम लगेगा कोड को लिखने में, आपको सिर्फ एक बार टाइम लगेगा इस कोड को लिखने में, लेकिन एवरी टाइम दिस कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इट विल एग्जीक्यूट फास्टर, है ना? तो राइटिंग के टाइम पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कोड डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कोड को डेवलप कर चुके होगे तो उसको एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगेगा। इतना सबको क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले S1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर सर पैरेलल एग्जीक्यूशन हुआ। कौन कौन सी चीजें पैरेलल एग्जीक्यूशन चलेंगी? S3, सुनना अच्छे से, कौन कौन सी चीजें पैरेलल एग्जीक्यूशन में चलेगी? सर पर बिगिन और पर एंड। सुनना, S3 के साथ पैरेलली कौन चलेगा? अगर यहाँ बिगिन स्टार्ट हो गया है तो इस बिगिन का एंड जब तक नहीं हो जाता, ये पूरी की पूरी चीज S3 के साथ पैरेलली रन करेगी। आया ना, समझ में आया? पर बिगिन आपने क्या क्या चीजें स्टार्ट की पैरेलली S3, और ये बिगिन से एंड तक का जो कुछ भी है ये पूरा का पूरा पैरेलली चल रहा है S3 के साथ, ये पूरा का पूरा पैरेलली चल रहा है S3 के साथ। सो पर बिगिन एंड पेरेंट के बीच में आपने क्या लिखा? पर बिगिन और पेरेंट के बीच में आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि सर ये पर बिगिन और पेरेंट को अगर आप देखो तो यहां से समझ में आता है कि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो S3 है और ये एक पूरा कोड S3 है और ये पूरा बिगिन और एंड के बीच में है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो चीज है ये पैरेलली चल सकता है S3 के साथ, ये जो पूरा का पूरा चीज है ये पैरेलली चल सकता है S3 के साथ। तो मैंने वही लिखा कि S3 कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली विद दिस, बट जब मैं इसको लिख रहा था मुझे पता चला कि इसके अंदर सबसे पहले S2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर S4 एग्जीक्यूट होना चाहिए, और जब S4 एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप S5 और S6 को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इन दिस sequential execution after S2 and S4 you can start executing S5 and S6 parallelly, but the parallel execution of S5 and S6 can start only after the execution of S4, and the execution of S4 can start only after the execution of S2, and this whole thing can execute in parallel with S3. Yes, clear? एंड जब ये सारी की सारी चीजें हो जाए तो यहाँ तो बिगिन लिखा था ना, यहाँ बिगिन लिखा था, तो बिगिन के बाद आपने S1 को एग्जीक्यूट किया, फिर ये बिगिन पेरेंट जब ये पेरेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये सारी की सारी चीजें हो चुकी होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कब एग्जीक्यूट कंप्लीट होंगी? बिगिन और पेरेंट के बीच की जब सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगी तभी ये इस पेरेंट से बाहर आएगा। तो जब मैं इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट कर चुका हूं, इसका मतलब S3 भी कंप्लीट हो चुका है और इस पूरी चीज का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली आई कैन एग्जीक्यूट S7, and after executing this S7 I can remove this, I can end this begin, so this will be end of this begin, so ये वाला जो लास्ट वाला जो सबसे हायर लेवल पे बिगिन एंड एंड लिखा है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। आप इस बिगिन और इस एंड को ओमिट कर सकते थे, इसका लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर एवरीवन? Now each one of you must understand that what's the benefit of this, कि
यहाँ पर कुछ चीजें पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती हैं अगर सिस्टम मल्टी प्रोसेसर है तो आपको इस कोड को लिखने में टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर क्या कॉन्करेंसी है उसको समझने में टाइम लगेगा, बट वंस यू आर डन विद दिस, once you have written the code, every time you will execute that code, it will take lesser amount of time on a multiprocessor system. So that will be all. So the idea, अब देखो एक और चीज देख लो सर, इस पूरी चीज को पहले स्टार्ट कर सकता था इसके साथ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर आप यहां पर ये जो पूरी चीज है, यहां पर ये जो पूरी चीज है, इस पूरी चीज को अगर ऐसे लिख देते तो कुछ बदल जाता क्या? कैसे सर? बता रहा हूं मैं। अगर आपको ऐसे लिख देते, इसका मतलब इस S3 को नीचे लिख देते और इस पूरे को ऊपर लेके चले जाते तो कुछ बदलता क्या? नहीं सर कुछ नहीं बदलता, नहीं सर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ये बोल क्या रहा है, बोल तो सिर्फ ये इतना ही रहा है ना। क्या बोल रहे हैं कि सर S3 कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विद दिस, हियर आल्सो इट इज सेइंग दिस थिंग कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली विद S3। तो इन दोनों को किसको ऊपर नीचे लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं होना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। पर बिगिन और पेरेंट के बीच में जो कुछ भी चीजें लिखी हुई हैं, पर बिगिन और पेरेंट के बीच में जो कुछ भी चीजें लिखी हुई हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इन दी लूप ऑफ बिगिन एंड, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, हाँ या ना? पैर बिगिन और पेरेंट के बीच में, क्योंकि वो चीजें पहले ही एग्जीक्यूट कर सकती है, इसका मतलब कौन पहले एग्जीक्यूट करे कौन बाद में एग्जीक्यूट करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि S3 पहले पहले वाले प्रोसेसर पे जाकर या बाद वाले पे, एज एंड व्हेन अवेलेबल उसके बेसिस पे ये वाली चीजें एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, चलो। सो दैट्स वन थिंग, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दिस टू आर एग्जैक्टली सेम, दिस टू आर एग्जैक्टली सेम। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट the code for another precedence graph. So let's assume that this is your S1, this is your S2, this is your S3, this is your S4, this is your S5, this is your S6, the simplest code, and then you have S7. How do you write pair begin and pair end code for this precedence graph? Just write this. Done. बहुत सिंपल है, आपको सब पहली बार समझने में लगा होगा क्योंकि आप इसको पहली बार देख रहे हो, इसलिए आपको लगा होगा कि क्या कर रहे हैं, बट राइटिंग द कॉन्फिडेंट कोड इज इजी। करेक्ट अक्षर।
मनीष शर्मा, आर यू इन दी क्लास? मनीष, तुम क्लास में हो? You are saying that you are preparing from Pratigya batch. Are you in this class? Are you present in this class? चलो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट यू विल एग्जीक्यूट S1. बिगिन एंड के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है. First you will execute S1, and the moment you execute S1 you can start executing certain things parallelly. What? S2 can be executed in parallel with S3. These two things can be executed in parallel with S4, S5. These two things can be executed parallelly with S6. So just write the pair begin parent code for this. So what will you do? After S1 you can say pair begin. Then what are all the things which can be executed parallelly? So S2, S3, S6, this three thing can be executed parallelly. But what about this? This must be executed in sequence. These two statements, S4 and S5, must be executed in sequence along with S4, along with the other statements. So first you will write begin execution of S4, then only after S4 you can execute S5, and then you can end this sequential execution. So what are the things which will get executed in parallel? This thing, this thing, this thing, and this thing. These four things will get executed parallelly. Once you have written all the things which needs to get executed parallelly, you can end the parallel start. So please say pair end. Now, once you are done with all this thing, you can eventually execute S7. Simple enough. Clear? सुबंधु सब गोबर हो गया. पता नहीं तुमने क्या लिखा. S1 S2 जो था वो WEY देख करके लिख लेते तो अच्छा रहता ना. वो ऊपर वाला लेटर, ऊपर वाली लाइन नंबर की जगह हाथ तुम्हारा नीचे चला गया. चलो, क्लियर? आई होप दिस कोड इज क्लियर टू एवरीवन. तो सेम टू सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा. अगर कोड अलग लिख दोगे तो शायद वो कुछ और करने लगे. हाँ, बट इन चारों चीजों का ऑर्डर बदल सकता था. इन चारों चीजों का, इसका मतलब इन तीनों का ऑर्डर, इन तीनों को मैं कहीं भी लिख सकता था इस पैर बिगिन और पेरेंट के बीच में. ठीक है, बट इन तीनों में से किसी को भी इस बिगिन एंड के बीच में नहीं घुसा सकता था, अदरवाइज मीनिंग बदल जाता. ठीक है, चलो. इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर प्रोग्राम में कॉन्करेंसी हो तो उसको पैर बिगिन और पैर एंड का यूज करके लिखा जा सकता है. बट इज इट ऑलवेज पॉसिबल? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा थोड़ा सा नंबर नीचे चला गया. सो इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट अ कॉन्करेंट प्रोग्राम यूजिंग पैर बिगिन एंड पैर एंड? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड एग्जांपल. Let's say this is your S1, then say S2, then say S3, then say S4, S5, then say 6. Try writing the pair begin and pair end code for this particular precedence graph. Can you always write the can you always write? एक मिनट, थोड़ा सा इसको बदल लो. एक मिनट. कुछ बदलता नहीं, पहले वाले में भी दिक्कत थी.
Can you write the concurrent program for this precedence graph using pair begin parent concept? चैप्टर का नाम देखना, यहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर का नाम डाला हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, अपने नोट्स में लिख लेना। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पार्ट 10 इज एक्चुअली कॉन्करेंसी एंड कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग along with the starting lectures of Deadlock. क्या आप इसके लिए पेर बिगिन पेरेंट कोड लिख पा रहे हो? क्या आप इसके लिए कॉन्करेंट कोड लिख पा रहे हो, कॉन्करेंट प्रोग्राम लिख पा रहे हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पेर बिगिन एंड पेर एंड? दो मिनट क्या रुकिए, मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ। नहीं हो पाएगा, सुनना कहानी। चलो समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर इसके एग्जीक्यूशन के साथ इस चीज का पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकता है इनके साथ, है ना? यही सोच होगी, यही सोच होगी कि सर जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो इसके साथ इन दोनों को पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यस दैट्स ओके। अक्षर समझो बात को, मैं बोल रहा हूं जब S1 का एग्जीक्यूशन हो चुका है तो S1 S3 के साथ S2 और S7 का पैरेलल एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। अप टू दिस पॉइंट इट्स ओके, अप टू दिस पॉइंट इट्स ओके। बट ये जो आपका S4 का एग्जीक्यूशन है वो इन दोनों के पैरेलल एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इस S4 का जो एग्जीक्यूशन है वो इन दोनों के पैरेलल एग्जीक्यूशन के एंड होने के ऊपर डिपेंडेंट है, वेयरएज इसका एग्जीक्यूशन इस S3 के एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। तो अगर आप ये बोलो कि जब इन दोनों का पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड हो जाए, सुनना कहानी क्या बोल रहा हूं, अगर आप ये बोलो कि जब इन दोनों का पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड हो जाए तभी मैं S5 और S4 का पैरेलल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ S5 शुड नॉट बी dependent on the execution of S3. As soon as this two has completed their execution, you should be able to execute statement S5 no matter S3 has completed its execution or not. है ना? समझ में आया क्या कह रहा हूं? अगर आप कहते हो कि सर S1 के एग्जीक्यूशन के बाद S2 और S7 पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं along with S3, then up to this point it's fine. बट आप अगर इसके बाद ये कहते हो कि जब इन दोनों का पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड हो जाए उसी के बाद आप S5 और S4 का पैरेलल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, then there's a problem कि आप S5 के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए S3 के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो, जबकि S5 का एग्जीक्यूशन S3 के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। हाँ, तो इस टाइप की डिपेंडेंसी को एक नाम दिया गया है, टाइप की डिपेंडेंसी को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस डिपेंडेंसी। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो, जो मैंने बोला है उसी टाइप से। अगर क्रॉस डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, अगर आपके प्रेसिडेंस ग्राफ में क्रॉस डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो आप उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंस ग्राफ के लिए कॉन्करेंट प्रोग्राम नहीं लिख सकते यूजिंग पेर बिगिन एंड पेर एंड। सो
So just note down, it is not always possible to write concurrent program only with the help of is not always possible to write the concurrent program only with the help of pair begin and pair end. So what's the idea? If cross dependency exists, then it is not possible. What is not possible? It is not possible to write the concurrent program only with the help of pair begin, pair end. तो क्या सर इसके लिए concurrent program लिखा ही नहीं जा सकता? क्या इसके लिए concurrent program लिखा ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है. उसको ब्रैकेट में लिख लेना. But we can always write concurrent program for any precedence graph if we use बाइनरी सीमाफोर्स. हाय हाय, यहां भी आ गए क्या तुम? If we use binary semaphores along with pair begin but we can always write concurrent program for any precedence graph if we use binary semaphore along with pair begin pair end. सर ये क्या बवाल है? अब यहां पर भी सीमाफोर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे. चलो, पहले इतना सा स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर मैं इस पूरे कोड के लिए, इस पूरे प्रेसिडेंस ग्राफ के लिए आपको एक कॉन्करेंट प्रोग्राम लिख के देता हूं विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर एंड pair begin pair end construct. Done? तो ले लो, यहां पर सीमाफोर की बात करना शुरू कर देते हैं. करो सर, मानोगे थोड़ी ना आप. देखो, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा. इन अ व्हाइल यू विल गेट दिस. लेट्स एज्यूम कि मेरे पास कुछ बाइनरी सीमाफोर्स हैं. वो कौन कौन से हैं? सर वो बाइनरी सीमाफोर है. यहाँ पर एक बाइनरी सीमाफोर हो रहा है यूज ए, यहाँ पर एक बाइनरी सीमाफोर बी यूज हो रहा है. यहाँ पर सीमाफोर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन दोनों का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल है. यहाँ पर सर इसको डीबीएमएस के से कंपेयर कर सकते हैं क्या कॉन्करेंट शेड्यूल? नहीं, कुछ भी चीजें बीच में मत घुसाओ, कुछ भी चीजें बीच में मत घुसाओ. कॉन्करेंट शेड्यूल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. तो ऐसा मत करो. तुम सोचो ना कि तुम इसको कंपेयर कर सकते हो क्या उसके साथ. ये चीज क्या है? ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है, ठीक है. और वहां पर डेटाबेस की एक्सेसिंग है, दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है. वहां पर वेरिएबल्स की जो एक्सेसिंग है वो अलग टाइप से होती है. तो वहां पर
जो कॉन्करेंट प्रोग्राम है वो बिहेवियर वाइज आपके इक्विवेलेंस की बात करता है कि आपके जो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का बिहेवियर है वो किसी ना किसी सीरियल एग्जीक्यूशन के बिहेवियर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड the concept which are being used for the to understand that particular thing are completely different from which we are discussing here. तो दोनों चीजों को मिलाओ ही मत, है ना। तो ये दो सीमाफोर हैं ए बी, यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि इसके लिए सीमाफोर यूज हो रहा है सी, इसके लिए सीमाफोर यूज हो रहा है डी, इसके लिए सीमाफोर यूज हो रहा है ई, इसके लिए सीमाफोर यूज हो रहा है एफ, इसके लिए सीमाफोर यूज हो रहा है जी। सो मुझे इतने ही सीमाफोर की जरूरत पड़ेगी, मुझे इतने ही सीमाफोर की जरूरत पड़ेगी। इन अ व्हाइल यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट। इधर आपको कैसे पता चला कि इतने ही सीमाफोर चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर सीमाफोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ S2 द एग्जीक्यूशन ऑफ S7 नीड्स टू बी सीक्वेंशियल, और कोई कॉन्करेंसी वहां पर दिखाई दे ही नहीं रही। तो अब आप मुझसे बोलोगे सर कैसे एग्जीक्यूट करें? तो बेटा एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपका जो सबसे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा दैट इज बाउंड टू बी स्टेटमेंट S1, इट इज बाउंड टू बी स्टेटमेंट S1। अब देखो मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, क्योंकि अगर अदरवाइज मैं अलग अलग लिखूंगा तो ये कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं बहुत सारी चीजों का एग्जीक्यूशन पैरेलली स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों का एग्जीक्यूशन पैरेलली स्टार्ट कर रहा हूं। इसका मतलब मैं पैरेलली एग्जीक्यूट करना शुरू करता हूं एक कोड को। समझना अच्छे से क्या बोल रहा हूं, समझना अच्छे से क्या बोल रहा हूं। पूरा ही तो लगा दिए सर सीमाफोर, और बोल रहे हो इतना ही चाहिए। नहीं, इतना ही सीमाफोर चाहिए, मतलब इतने नंबर ऑफ सीमाफोर चाहिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीमाफोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऐसा मत सोचना कि सर क्या उतने सीमाफोर, अगर कोई मुझसे इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोल लूं व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ सीमाफोर्स रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ सीमाफोर्स रिक्वायर्ड टू राइट द कॉन्करेंट प्रोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंस ग्राफ, तो अगर आप यहाँ के लिए भी एक सीमाफोर यूज कर लो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट विल बी एन अननेसेसरी सीमाफोर, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो आई विल एक्सप्लेन ना भाई कि हो क्या रहा है। आप लोग तो दुखी मत हो गया, दुखी बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। दुख जीवन का सबसे बड़ा कष्ट। तो सबसे पहले क्या, पैरेलली। सो बहुत सारी चीजें पैरेलली स्टार्ट कर दो। देखना, इसको स्टार्ट करने से पहले आप जो बाइनरी सीमाफोर्स हैं, ये जो आपने सारे लिए हैं, इन सबको इनिशियलाइज कर दो विद वैल्यू 0। सो लेट मी इनिशियलाइज दिस वैल्यू बाइनरी सीमाफोर्स। बाइनरी सीमाफोर्स क्या क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, ऑल इनिशियलाइज टू 0। ये जितने भी सीमाफोर हैं इन सबको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब अब जब तक इन सीमाफोर्स के ऊपर, कहानी समझो ना, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ। जब तक इन सीमाफोर के ऊपर कोई अप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर देता, जब तक इन सीमाफोर के ऊपर, क्योंकि ये सब इनिशियलाइज हुए हैं 0 से, तो जब तक इनके ऊपर कोई अप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर देता तब तक इनके ऊपर डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। समझ गए? तब तक इनके ऊपर डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? तो अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि S1 से पहले अगर S2 एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, S1 से पहले अगर S2 एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, तो मैं S2 को बोलूंगा बेटा तुम डिपेंडेंट हो एक बाइनरी सीमाफोर ए के ऊपर। इसका मतलब तुम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, उससे पहले यू नीड टू परफॉर्म द डाउन ऑपरेशन ऑन दिस सीमाफोर ए। यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट S2 ओनली व्हेन दिस डाउन ऑपरेशन on the semaphore A is on the semaphore A is successful. Okay, लेकिन सीमाफोर A तो 0 से इनिशियलाइज है, तो आप बोलोगे फिर ये S2 तो कभी चल ही नहीं पाएगा। नहीं, execution of S2 can start only after the execution of S1. Execution of S2 can start only after the execution of S1. Therefore, S1 will ensure that once the execution of S1 completes, the S1 will ensure that once the execution of S1 completes, it will perform the up operation on semaphore A as well as up operation on semaphore B, because after the execution of S1, the down operation on A should be successful as well as on B should be successful, because after S1, S2 and S3 can actually start executing. Yes or no? ठीक है, बट अब एक और चीज समझना, सर जब
आपका जो जो आपका स्टेटमेंट S1 है वो एग्जीक्यूट कर चुका हो, तो जब वो इन सीमापोस ए और बी को अप ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो क्या मुझे ये मेंटेन करना चाहिए कि पहले सीमाफोर ए के ऊपर अप ऑपरेशन होगा या पहले सीमाफोर बी के ऊपर अप ऑपरेशन होगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि S1 के बाद दोनों में से कोई भी पहले ट्राई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप इस स्टेटमेंट S1 के एग्जीक्यूशन के बाद सीमाफोर ए और सीमाफोर बी के ऊपर जो अप ऑपरेशन है उसको कॉन्करेंटली स्टार्ट कर सकते हो, उसको कॉन्करेंटली स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? तो समझना, इस पेयर बिगिन में मैं बहुत सारे बिगिन स्टेटमेंट लिखूंगा। The first begin statement is begin। सबसे पहले देखो, मैं S1 के पहले कोई सीमाफोर यूज नहीं कर रहा हूं, मैं S1 के पहले कोई सीमाफोर यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट S1 का एग्जीक्यूशन किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ गए बात को? मैं स्टेटमेंट S1 के पहले कोई सीमाफोर यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट S1 किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन बिगिन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर इस लाइन में जो भी चीजें लिखी हुई है वो एक सीक्वेंस में होगी। यहां पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एक सीक्वेंस में होगी। तो आप बोलोगे S1, और S1 के बाद ए और बी के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन क्या इस ए और बी के ऊपर जो अप ऑपरेशन है वो पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है? यस सर। तो इस S1 के एग्जीक्यूशन के बाद यू विल स्टार्ट द पैरेलल एग्जीक्यूशन, यू विल स्टार्ट द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट? अप ऑपरेशन ऑन सीमाफोर ए and up operation on semaphore B. Once you are done, you will end the parallel execution for the up operation on these two semaphores. Yes or no? And finally, you will end the execution of this begin. Finally, you will end the execution of this begin. So, इसका मतलब सुनो, क्या ये सारे के सारे ऑपरेशन सबसे पहले हो सकते हैं? हाँ, देखना, अगर S1 पैर बिगिन, इसका मतलब सबसे पहले S1 एग्जीक्यूट करना शुरू करें तो S1 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, क्योंकि S1 किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। S1 के बाद आप पैरेलली अप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे ए और बी पे, अप ऑपरेशन विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों पैरेलली अप ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं अलग अलग प्रोसेसर पे, एंड फाइनली यू विल एंड दिस एग्जीक्यूशन। इसका मतलब S1 बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। देन यू विल से स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस थिंग, start executing the execution of this thing. So we'll say begin। इसका मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन है ये भी सीरियली होगा। अब बात समझना, क्या बोलोगे सर ये दोनों तो लेकिन पैरेलल पर बिगिन में लिखे हुए हैं। हाँ, इन दोनों का एग्जीक्यूशन पैरेलली स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होगा ही नहीं, इसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होगा ही नहीं जब तक अप ऑपरेशन ऑन ए परफॉर्म ना हो जाए। अगर ये पहले ट्राई करेगा तो इसको ब्लॉक करके रख दूंगा। ये अनब्लॉक कब होगा? जब ये स्टेटमेंट S1 एग्जीक्यूट होने के बाद अप ऑपरेशन ऑन सीमाफोर ए परफॉर्म करेगा। हाँ, तो मैं यहां पे लिखूंगा बिगिन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस S2, आई विल परफॉर्म द डाउन ऑपरेशन, I will perform the down operation on semaphore A. Down operation on semaphore A may be successful, may be unsuccessful. It will be successful only if this up operation on semaphore A has been performed. But this up operation on semaphore A can be performed only after the execution of S1. Therefore, there should not be any problem in the beginning of execution of statement 2. Yes or no? So you will perform the up operation. If this up operation is successful, then you can perform the execution of S2. Now let's see. After S2, execution of S7 can eventually start. Therefore, after S2, and this 2 should execute sequentially. This 2 should execute sequentially. Therefore, after execution of S2, you can start execution of S7. You can start execution of statement S7. Once you have executed statement S7, you will get in a while. Once you have executed statement S7, you need to perform the up operation on E as well as D. Now let's try to understand. If you have executed statement S1 and you have performed the up operation on semaphore E, then S5 before executing will try to perform the down operation on semaphore E, and it will be successful if after S7 you have performed the up operation on semaphore E. It is not dependent on the execution of S3, because S3 will eventually perform the up operation on semaphore C and it will never perform the down operation on semaphore C. But execution of S4 is dependent on S7 as well as S3. Therefore, before starting the execution of S4, you will perform two down operation, one
on the semaphore D and 1 on the semaphore C. You can start the execution of S4 जब दोनों ही डाउन ऑपरेशन D and C पे सक्सेसफुल हो गए हो। दोनों ही सक्सेसफुल हो गए हो मतलब जब S3 एग्जीक्यूट करके C के ऊपर आप परफॉर्म कर चुका हो और S7 एग्जीक्यूट होकर के D के ऊपर आप परफॉर्म कर चुका हो। इसका मतलब S4 का एग्जीक्यूशन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, whereas S5 का एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ S7 के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हुआ जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पहले इतना बोलो, क्लियर हुआ जो मैंने बोला? अगर सुनोगे नहीं ना मेरी बातों को, अगर सुनोगे कि बाद में सुन लूंगा, लिखेंगे तब देख लूंगा, तो कुछ नहीं चमकेगा। मेरा सब कुछ सिर्फ बोलने में है, ज्यादा दाएं बाएं की चीजें ना सोचना, है ना। अब क्या करेंगे भाई, S2 और S7 सीक्वेंशियली परफॉर्म हो गए। अब आपको ई और डी के ऊपर अब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन इस ई और डी के ऊपर जो अब ऑपरेशन है दैट कैन बी परफॉर्म पैरेलली, क्योंकि कौन सा पहले परफॉर्म करूं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आई विल परफॉर्म द पैरेलल execute, I'll start the parallel execution of what? Up operation on semaphore E and up operation on semaphore D. Then I'll end this parallel execution. After ending this parallel execution, you have actually ended this. Therefore, you will end the execution of begin, or you will end the begin at this point of time. Now what else? Sir, ये तो हो गया, इसके लिए तो कोड लिख दिया, इस S3 के लिए तो लिखो। बोले हाउ लिखते हैं, तो बोलोगे begin what? Begin first before execution of S3 you need to check the down operation on semaphore B. So first of all you will check the down operation of semaphore B. अगर ये सक्सेसफुल है इसका मतलब S1 इसको अप कर चुका है, इसका मतलब तुम चालू कर सकते हो। अब देखना S3, इसका मतलब अगर ये सक्सेसफुल है so you will simply execute S3, you will simply execute S3 और S3 के बाद आपको S3 सिर्फ और सिर्फ किसको परमिशन देता है? S4 को। तो S3 के बाद आप सीधे सीधे अब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सीमाफोर सी पे। ये अकेला ही है तो पैरबिगिन पेरेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये अकेला ही है तो पैरबिगिन पेरेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले अब चेक करोगे जब S3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, तब सबसे पहले डाउन ऑन बी चेक करोगे, उसके बाद S3 करोगे। जब S3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तभी सी के ऊपर अब ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। बफर बढ़ा लो शुभेंदु, बफर बढ़ा लो, है ना। चलो तो इसका एग्जीक्यूशन भी हो गया। सर कैन यू एक्सप्लेन द एग्जीक्यूशन ऑफ S4? हाँ, लेट्स स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ S4, बिगिन। सर S4 का एग्जीक्यूशन तो दो लोगों पे डिपेंडेंट है, किस पे? D और C के डाउन ऑपरेशन पे। लेकिन सर पहले मैं D का डाउन ऑपरेशन चेक करूं फिर मैं C का डाउन ऑपरेशन चेक करूं, ये जरूरी है क्या? नहीं बेटा, आपका दोनों का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। आप किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यू विल से पर बिगिन you will parallelly start performing the down operation on this two semaphore D and C. So you will pair begin perform the down operation on semaphore D, perform the down operation on semaphore C. Then if you have performed, if both of them are completed, then only you will be able to end the parent, right? Once इसका मतलब आपने सबसे पहले इन दोनों के ऊपर पैरेलली डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। अगर आप यहां पर आ गए इसका मतलब दोनों का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर दोनों का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो आप सीधे सीधे जाकर के इस S4 को एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है सर, S4 को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन S4 के एग्जीक्यूशन के ऊपर S6 का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है, तो ये अप ऑपरेशन परफॉर्म करे G के लिए, तो ये अप ऑपरेशन परफॉर्म करे सीमाफोर G के लिए। और अगर ये भी हो गया तो उसके बाद ऐड करके बाहर आ जाओ। सुनना, अब आपने S4 को भी डिफाइन कर दिया, सर S5 का एग्जीक्यूशन भी दे दो, ले लो। X5 का एग्जीक्यूशन क्या होगा? बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ S5। बट S5 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जब E का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। तो आप सबसे पहले परफॉर्म करोगे डाउन ऑपरेशन ऑन सीमाफोर E। सबसे पहले यू विल परफॉर्म डाउन, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो सिर्फ इसी को चेक करो कि डाउन ऑपरेशन ई सक्सेसफुल है क्या। नाउ अगर डाउन ऑपरेशन ऑन ई सक्सेसफुल है तो आप S5 को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आप S5 को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर S5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हो तो S6 के एग्जीक्यूशन के लिए रास्ता दो। इसका मतलब
इस सिमाफोर ऐप के ऊपर, सिमाफोर ऐप के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करो और एंड कर जाओ। नाउ जब ये वाली चीज भी हो गई हो तो फाइनली S6 को देख लो, फाइनली S6 को देख लो। S6 बेचारा क्या बोलेगा, S6 बोलेगा कि भैया एक काम करते हैं, बिगिन करो। लेकिन जो S6 है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है कि S4 भी कंप्लीट हो गया और S5 भी कंप्लीट हो गया हो। तो कैसे पता चलेगा S5 कंप्लीट हो गया, जब F के ऊपर डाउन सक्सेसफुल हो। कैसे पता चलेगा S4 एग्जीक्यूट हो गया, जब G के ऊपर डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। पहले किसको चेक करूं, कोई नेसेसरी है क्या, नहीं, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। सो लेट्स से पैर बिगिन व्हाट, डाउन ऑपरेशन ऑन F एंड डाउन ऑपरेशन ऑन G। अगर दोनों हो जाए तो आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। अगर ये दोनों ही चीजें आप यहां तक आ चुके हो, इसका मतलब डाउन ऑन F एंड G दोनों सक्सेसफुल हैं। इसके बाद आप सीधे सीधे S6 को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसके बाद एंड कर दो। नाउ ये जो सारी चीजें थी, ये सारी चीजें पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकती थी, तो फाइनली ये सारी चीजें पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकती थी, तो फाइनली इसको, अरे भाई, एंड कर दो, है ना। अब देखा सर, आप बोलोगे सर पैरेलल में लिखा हुआ है, सर पैरेलल में लिखा हुआ है, पहले इसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो क्या, अरे करना शुरू, जैसे ही डाउन ऑपरेशन ऑन डी परफॉर्म करोगे ब्लॉक हो जाओगे। कब तक के लिए ब्लॉक हो जाओगे, जब तक कि S7 एग्जीक्यूट होकर के इस डी के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म ना करे। क्योंकि अगर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए कोई ब्लॉक हुआ है तो वो अनब्लॉक कब होता है, जब कोई दूसरी प्रोसेस या फिर कोई दूसरा स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर सिमाफोर के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगा, तभी वो उस सिमाफोर की क्यू में से उस ब्लॉक्ड ऑपरेशन को बाहर निकाले। क्लियर एवरीवन। इसका मतलब इस प्रेसिडेंस ग्राफ में क्रॉस डिपेंडेंसी थी, इस प्रेसिडेंस ग्राफ में क्रॉस डिपेंडेंसी थी, इसलिए इसके लिए मैं सिर्फ पैर बिगिन और पेरेंट का यूज करके कॉन्करेंट प्रोग्राम नहीं लिख पा रहा था। लेकिन अगर मैं पैर बिगिन और पेरेंट के साथ सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर का कॉन्सेप्ट भी यूज करूं, देन आई विल बी एबल टू राइट द कॉन्करेंट प्रोग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। I hope now each one of you should understand three things at this point of time. कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं या नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं या नहीं, आपकी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। दो स्टेटमेंट, चंद्र प्रकाश, नहीं अक्षत, हम नहीं हटा सकते क्रॉस डिपेंडेंसी। इंस्ट्रक्शन के बीच में जो क्रॉस डिपेंडेंसी है, अगर वो प्रोग्राम उस चीज को डिमांड करता है, अगर आपका प्रोग्राम उन वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपकी सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो भी आप सॉल्व करना चाह रहे हो प्रोग्राम लिख करके, अगर वो उस रिलेशनशिप को डिमांड करता है तो वो वहां पर रहेगी, आप उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, वी कैन नॉट रिमूव द क्रॉस डिपेंडेंसी फ्रॉम अ गिवन प्रोग्राम। अब चंद्र प्रकाश मुझसे कह रहा है कि सर जब पूरा सीक्वेंस में होगा, कौन ने बोला सीक्वेंस में होगा, मैंने बोला ही नहीं कभी भाई कि सीक्वेंस में होगा, तुम अपनी मर्जी से बोल दिए सीक्वेंस में होगा। मैंने कभी बोला ही नहीं कि सीक्वेंस में होगा, मैंने कभी बोला ही नहीं कि सीक्वेंस में होगा। ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसर पे, ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसर पे। ठीक है, लेकिन जो समझने वाली चीज है वो ये कि अगर ये अलग अलग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये अलग अलग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो अलग अलग प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये वाले को एग्जीक्यूट करने में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी प्रोसेसर पे जाएगा उसके ऊपर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना,
ये वाला अगर किसी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, अगर ये वाला किसी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ये इतना ऑपरेशन, ये इसके ऊपर इससे आगे सब तभी बढ़ पाएगा, ये उससे आगे सब तभी बढ़ पाएगा जब ये उससे आगे सब तभी बढ़ पाएगा जब ये वाला डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका हो। अब समझना बात को, अब बात समझना। नाउ ये वाला जैसे ही इसने ये अप ऑपरेशन ऑन ए परफॉर्म कर दिया था, जैसे इसने अप ऑपरेशन ऑन ए परफॉर्म कर दिया था ये वाली चीज, और जैसे इसने ये अप ऑपरेशन ऑन बी परफॉर्म कर दिया था ये वाली चीज, ये दोनों ही सक्सेसफुल हो जाएंगी। अब ये दोनों ही सक्सेसफुल हो जाएंगी तो ये दोनों जिन दो प्रोसेसर पे बैठी होंगी, ये दोनों जिन दो प्रोसेसर पे बैठी होंगी वहां पर ये वाला जो एग्जीक्यूशन है ये कॉन्करेंटली कर सकती हैं, है ना चंद्र प्रकाश? ये वाला जो दो इंस्ट्रक्शन है, वंस the first statement has performed the up operation on both A and B, this two will be able to execute concurrently on those two systems, on two different systems. Therefore, this two can be executed in parallel. This two can be executed in parallel. Therefore, you will use pair begin and pair end. That is, this two can be executed in parallel. But if the execution of S1 has not completed yet, then this two will not be able to continue their execution. This two will not be able to continue their execution. है ना? और कौन आया? एक और मैडम आई। मैडम कौन सी वाली मैडम? क्या पूछा था उन्होंने, मैं भूल गया। सर प्लीज रिपीट सेकंड लाइन। सेकंड लाइन लाइक दिस सेकंड लाइन, दिस सेकंड लाइन, दिस सेकंड लाइन, कौन सी वाली बेटा? There are so many second lines. Tanuja. Tanuja, please repeat second line. कौन सी? So, ये सारे पैरेलली एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये जो अप ऑन सीमाफोर ऑपरेशंस हैं और ये जो डाउन ऑन सीमाफोर ऑपरेशंस हैं, ये इंश्योर करेंगे कि कभी भी एग्जीक्यूशन इनकरेक्ट ना हो। तुमने मुझसे पूछा सेकंड लास्ट, सो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर समझो, S5, these are S5 डाउन ऑपरेशन अप ऑपरेशन, ठीक है। नीचे से सेकंड ना, हाँ ना भाई, सेकंड लास्ट समझ गया ना, वही होती है ना नीचे से सेकंड, यही है ना। अब तुम पेरेंट के लिए तो नहीं पूछ रही होगी, ऑब्वियसली बात है कि इसको भी काउंट कर रही हो, तो आप इसको पूछ रहे हो तो इसको बता देता हूँ, चलो दोनों को बता देता हूँ, दोनों को बता देता हूँ। सुनना, दिस line is actually for the execution of S5. This line is actually for the execution of S5. तो S5 का जो execution है वो S3 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, और वही प्रॉब्लम थी। तो इस बार मैंने क्या बोला, S5 सिर्फ और सिर्फ डाउन ऑपरेशन ऑन ई सीमाफोर चेक करेगा। S5 सिर्फ और सिर्फ डाउन ऑपरेशन ऑन ई सीमाफोर चेक करेगा, और ई के ऊपर जो अप ऑपरेशन है, वो S7 के कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसका S3 के एग्जीक्यूट होने से कोई लेना देना नहीं है, उसका S3 के एग्जीक्यूट होने से कोई लेना देना नहीं है कि वो अभी तक कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसको अभी तक कोई स्पेसिफिक प्रोसेसर मिला है या नहीं। बट अगर S7 एग्जीक्यूट हो चुका है तो मैं S5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लूंगा। इसका मतलब S5 का एग्जीक्यूशन इन पैरेलल चल सकता है S3 के साथ। S5 का एग्जीक्यूशन इन पैरेलल चल सकता है S3 के साथ, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है ना। बात समझना। हाँ, तो S7 ने जब अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है तो E के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। S7 कहा गया, S7 ने ये परफॉर्म करने के बाद E के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। तो S5 को एग्जीक्यूट कराना है तो S5 चेक करेगा कि S7 एग्जीक्यूट हो तभी मैं चलूं, तो ये बोलेगा E के ऊपर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्योंकि E के ऊपर डाउन ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तब सक्सेसफुल हो सकता है जब S7 एग्जीक्यूट हो गया हो और E के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका हो। तो ये पहले चेक करेगा कि E के ऊपर डाउन चेक कर लेता हूं, तो E के ऊपर से डाउन चेक किया, अगर ये इससे आगे बढ़ा है इसका मतलब E के ऊपर डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल था। इसका मतलब S7 एग्जीक्यूट होकर के E के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका था, मतलब S7 एग्जीक्यूट हो चुका था, इसलिए S5 की डिपेंडेंसी सिर्फ S7 के ऊपर थी, इसलिए S5 एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकता है। तो आपने बोला S5 अंकल चलो, तो हमने बोला S5 तो चल गया, लेकिन अब S5 क्या बोलेगा, S5 बोलेगा मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है लेकिन मेरे ऊपर S6 डिपेंडेंट है, तो जब S6 एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो ये चेक करने की कोशिश करेगा कि क्या S5 एग्जीक्यूट कर चुका है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि S5 एग्जीक्यूट कर चुका है, तो बोलेगा S6 चेक करेगा कि डाउन ऑपरेशन ऑन F सक्सेसफुल है या नहीं।
तो उसका डाउन ऑपरेशन तो तब सक्सेसफुल होगा ना जब मैं इस एफ के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं। तो इसलिए ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद एफ के ऊपर अप ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं भूलेगा, ताकि आपका जो S6 है उसको पता चले कि S5 कंप्लीट हो चुका है। अब S6 अगर आप इस सेकंड लाइन की बात कर रहे हो तो समझना इसमें क्या होगा, जो S6 है वो सिर्फ और सिर्फ S5 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो S4 के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो S4 एग्जीक्यूट अगर हो गया होगा तो उसने S6 को बताने के लिए कि मैं भी एग्जीक्यूट कर चुका हूं, उसने इस G के ऊपर अब ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया होगा। तो अब क्या होगा, आपका ये जो S6 है ये दो चीजों को देखना चाहता था कि इसका मतलब S5 भी एग्जीक्यूट हो चुका हो और S4 भी एग्जीक्यूट हो चुका हो, मतलब F के ऊपर भी अब ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका हो और G के ऊपर भी अब ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका हो। तो ये जो होगा, ये जो आपका S6 का एग्जीक्यूशन है, ये S6 का जो एग्जीक्यूशन है ये F एंड G के ऊपर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ये यहां तक आ गया, इसका मतलब अगर ये दोनों डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं, अगर ये दोनों डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब ये भी अप हो चुका था और ये भी अप हो चुका था, मतलब S5 भी एग्जीक्यूट हो चुका था और S4 भी एग्जीक्यूट हो चुका था। तो अब अगर ये दोनों डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो मैं S6 को एग्जीक्यूट कर सकता हूं एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ S6 इसके ऊपर कोई और डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई और डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसके बाद मुझे कहीं और अब ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बेटा सर क्रॉस डिपेंडेंसी आपने कैसे चेक किया था, एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार प्लीज। अरे मैंने क्रॉस डिपेंडेंसी के लिए सिर्फ ये बोला था, इस टाइप की डिपेंडेंसी को क्रॉस डिपेंडेंसी बोलते हैं। कैसे चेक करना है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, देख लो अब बता रहा हूं। ओहो आप लोगों के ना एक बार में सुनने की आदत अच्छी नहीं है, आप लोग एक बार में सुनते नहीं। चलो कहानी क्या है सर, बोलो सर, बोलते हैं क्या। देखो सर ये जो दो एग्जीक्यूशन है इनके ऊपर डिपेंडेंसी देखो कैसी है। जो आपका S4 का एग्जीक्यूशन है, जो आपका S4 का एग्जीक्यूशन है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, S4 और S3। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि S4 का जो एग्जीक्यूशन है, S4 का जो एग्जीक्यूशन है वो S3 एंड S7 के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बोला हाँ S4 का जो एग्जीक्यूशन है वो S3 एंड S7 के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब S4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है जब S3 और S7 दोनों एग्जीक्यूट हो जाए, आया ना। लेकिन अगर आप इस प्रेसिडेंस को ग्राफ को देखते हो तो आपको पता है कि S5 और S4 के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं, आया ना। इस डिपेंडेंसी ग्राफ को देख करके आपको पता चलता है कि S5 और S4 के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो S5 और S4 पैरेलली में चल सकते हैं, S5 और S4 पैरेलली में चल सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए पैरबिगिन कोड लिखने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे कि पैरबिगिन S5 एंड S4। लेकिन S5 और S4 का जो पैरबिगिन कोड है वो सिर्फ और सिर्फ तब स्टार्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तब स्टार्ट किया जा सकता है जब S7 भी कंप्लीट हो गया हो और S3 भी कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि S7 इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि S7 इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आप S5 को भी वेट करवाओगे जब तक कि S3 कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि इन दोनों को पहले ही एग्जीक्यूट करना है। लेकिन S5 तो कभी S3 पे डिपेंडेंट था ही नहीं। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये क्रॉस डिपेंडेंसी है, दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन, स्टिल यू हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इफ यू वांट टू राइट द पैरबिगिन पैरेंट कोड। समझ गए? If one statement is not dependent on a particular statement, but still it needs to wait until the completion of that statement if you want to write the pair-begin and parent code, then such dependency will correspond to cross dependency. सिर्फ समझने के लिए, there is no such definition, बस समझो बात को। Done. So this is how you can write the concurrent program. Sir, each process after its completion perform up operation on connected semaphore. So let's try to understand. अब फिर परफॉर्म ऑपरेशन, उसकी नीड क्या है उसके बारे में सोचो बेटा। कौन क्या कर रहा है वो मत सोचो, कौन क्या कर रहा है जीवन में ये मत सोचो, ये सोचो कि उसकी नीड क्या है। उसकी नीड ये है कि आप जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको बताना चाहते हो। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है आप ए बी सी डी ई, मैंने जो लिखा था वही लिख देता हूं, नहीं तो फिर गुस्सा करोगे। ई एफ जी यही लिखा था मैंने। चलो ओके, तो मैं बोल रहा हूं
हर स्टेटमेंट अपने एग्जीक्यूशन के बाद अप ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मैंने 6 के बाद कोई अप ऑपरेशन परफॉर्म किया? नहीं सर, मैंने स्टेटमेंट 6 के बाद कोई अप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। आ रहा हूं, मतलब तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ गुलाम गौस, भगवान कसम ना सोचा तो करो। हाँ, क्या बोल रहा था? रूपम ने मुझसे पूछा है सर ईच प्रोसेस आफ्टर इट्स कंप्लीशन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी प्रोसेस अपने कंप्लीशन के बाद सिर्फ अप ऑपरेशन तब और तब परफॉर्म करेगी जब उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर किसी दूसरे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता हो। अगर डिपेंडेंसी होगी तो मैं सिमाफोर का यूज करूंगा। तो आप बोलोगे सर जब S2 के बाद S7 डिपेंड करता था तो यहाँ पर आपने डाउन और अप क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक सेमाफोर ले भी लेते, लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पर एक सेमाफोर ले लेता हूँ, तो मैं एक सीक्वेंस में ही लिखता। कैसे पता है आपको? अगर मैं यहाँ पर एक सेमाफोर ले भी लेता कि S2 के ऊपर S7 डिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ पर जो लिखता वो कैसे लिखता? S2 के ऊपर यहाँ पर तुरंत परफॉर्म करता अप ऑपरेशन ऑन दिस सेमाफोर H, और इसके तुरंत बाद में परफॉर्म करता डाउन ऑपरेशन ऑन सेमाफोर H, और ये जो पेयर है ये हमेशा सक्सेसफुल होता। ये सीक्वेंशियली है, अप परफॉर्म करते हो डाउन परफॉर्म करते, तो ये तो हमेशा सक्सेसफुल होता ही। तो ऐसी चीज जो फालतू में कोई नई चीज अचीव करके नहीं देने वाली, उसका यूज ही क्यों करना है? इसका मतलब इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होने वाला है, इसलिए यहां पर आपको कोई भी सेमाफोर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद आप सेमाफोर का यूज करो, ऐसा जरूरी नहीं है। सेमाफोर का यूज करने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ेगी जब वो किसी दूसरे डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करना चाहता है। समझ गए बात को? गुलाम गौस, यू आर सेइंग सर मतलब S5 और S4 पैरेलल एग्जीक्यूट अब नहीं कर सकते क्योंकि S4 डिपेंड S3 एंड S7। अरे भाई बात समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि S4 एंड S5 पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि S4 एंड S5 पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। S4 एंड S5 पैरेलली, सुनना अच्छे से जो बोल रहा हूं, S4 एंड S5 पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर S7 भी एग्जीक्यूट हो गया हो और S3 भी एग्जीक्यूट हो गया हो। सुनना, S4 और S5 पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर S7 भी एग्जीक्यूट हो गया हो और S3 भी एग्जीक्यूट हो गया हो, लेकिन S4 तब तक स्टार्ट ही नहीं कर सकता जब तक ये दोनों एग्जीक्यूट ना हो जाए। हाँ, इसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट ये है कि इस सिचुएशन में S4 और S5 क्या पैरेलली कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर दोनों S3 और S7 एग्जीक्यूट हो गए हो। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ S7 एग्जीक्यूट हुआ हो लेकिन S3 एग्जीक्यूट ना हुआ हो? अगर ऐसी सिचुएशन है कि सिर्फ S7 एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन S3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हमारा ये कोड इस सिचुएशन में भी S5 को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है, दो इट विल नॉट अलाउ S4 टू स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। ये समझो, ठीक है गुलाम गौस? ओ भैया शुभेंदु, हाँ प्लीज इग्नोर, वही बोल रहा हूं, इग्नोर ही करूंगा मैं, नहीं तो ना। ओहो, समझ में आया कुछ? चमका कुछ? आप लोग देखे ना, एक तो मैंने कोड क्या लिख दिया आपको। दो चीजें, एक तो जीवन में आपने ये वाली चीज, आई एम डैम श्योर कि आप में से 90% लोगों ने ये वाली चीज पहले कभी पढ़ी नहीं होगी, इसलिए आपको पचाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बट दिस क्वाइट इजी, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आई जस्ट होप कि अब आप लोगों को ये चीज आसान लगे। आई जस्ट वांट कि ये चीज आप लोगों को आसान लगे। हाँ, डन। सो यहाँ पर दो ही चीजें, फिर आप मुझे बीच में रोक लिए थे, मैं कुछ कुछ तो बता रहा था। हाँ, मैं ये बता रहा था
क्या बता रहा था, यहाँ से आपको सिर्फ क्या सीखना है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स कॉन्करेंट हैं, आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना। पता है पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए हमने उसको टाइम भी दिया। और इफ सच प्रोग्राम कम्स तो हमारे एक आध दो नंबर अगर गलती से आने वाले हो तो वो ना छूटे, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। ऐसा पहले एक बार क्वेश्चन आया है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। चल ओके भैया, क्या कह रहे थे, हाँ कॉन्करेंसी है स्टेटमेंट में, ये कैसे पता करोगे। टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट अगर दो स्टेटमेंट के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हूँ, दो स्टेटमेंट के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हूँ। अगर स्टेटमेंट्स कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं तो उनके बीच में कोई प्रेसिडेंस नहीं होगी। अगर स्टेटमेंट्स किसी और स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है तो एजेस की डायरेक्शन विल डिफाइन दी प्रेसिडेंस। Now, based on that, you will have the precedence graph for the particular program or the set of statements. Now, the idea is that given a precedence graph, if you want to write the congruent program, then there are two ways. If there is no cross dependency, so you'll have to identify that cross dependency if at all it exists. If at all it exists. So if there is no cross dependency, then you will be able to write the congruent program for that particular precedence graph. But if cross dependency exists in the program, then you will not be able to write the congruent program using begin and parent concept only. You will also have to utilize the concept of binary semaphore to write the congruent program. Now there is another way of writing the congruent program, so just note down। और वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपसे लास्ट में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है। दिस जस्ट अ कॉन्सेप्ट। तो मैं फाइनली आपको उसका एक लुक दे दूंगा। किस दिन दे दूंगा? जिस दिन मैं आपके साथ ये वाला ऑपरेशन डिस्कस कर लूंगा। अभी मैंने आपके साथ ये ऑपरेशन डिस्कस नहीं किया है, जो चीज के बारे में मैं बात नहीं किया हूं उससे रिलेटेड कोई बात करना भी नहीं चाहूंगा जब तक कि मैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से डिस्कशन नहीं करवा देता। लेकिन आप में से कुछ लोग क्या है ना, एक तो तेज भागते हैं, तो जो तेज भागेंगे वो बोलेंगे सर कॉन्करेंट प्रोग्राम फॉर्क ज्वाइन का यूज करके भी लिखा जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि हाँ भाई लिखा जा सकता है, वो भी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। concurrent program can also be written with the help of fork join instructions। इतना ही। चल ओके, तो आई डोंट थिंक कि कुछ नहीं चल रहा, दैट्स फाइन। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कॉन्करेंट प्रोग्राम अगर हैं तो वो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेंगे उसके क्वेश्चंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ आपको डिटेल में और दे दूंगा, इसलिए इस चीज के बारे में और ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, डू गाइस वांट टू राइट वन मोर कॉन्करेंट प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर? तो अगर ऐसा है तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, फिर अदरवाइज आगे चल सकते हैं। नो सर, नहीं चाहिए, ठीक है। बट एनीवे लेट मी राइट लेट मी जस्ट गिव यू दी प्रेसिडेंस ग्राफ। आप लोग घर पे ही ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग घर पे ही ट्राई कर लेना। अगर आप में से किसी को दिक्कत आती है देन प्लीज लेट मी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
Mhm. तो बनेंगे। Just try to write the concurrent program with the help of semaphore and per begin parent. Chalo, done with this. Now,